Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about polynucleotide, RNA, ribonucleic acid for class first year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the structure and composition of RNA, types of RNA, and also discuss about RNA as a carrier of genetic information and concept of gene. First, what is a ribonucleic acid or what is RNA? RNA basically a single stranded structure which is also a polypeptide chain structure, and it is composed of 4 different types of nucleotide. These nucleotides contain ribose sugar. In these nucleotides, adenine ribonucleotide, guanine ribonucleotide, cytosine ribonucleotide and uracil ribonucleotide. In DNA, thymine is present, while in RNA, uracil is present instead of thymine base, and these nucleotides are linked in the same manner as in DNA molecule. There are 3 types of RNA: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. First, what is a messenger RNA? The genetic information from the DNA molecule carries by the RNA which is known as messenger RNA, and when it carries the message from DNA, then it sent to the site where protein is synthesis, that is the ribosome. While the other RNA is the transfer RNA, it carries the specific amino acid, and this specific amino acid provide to the site where protein synthesis. So according to transfer RNA, its function to carry the specific amino acid and send it to the site where the protein synthesis. While ribosomal RNA, ribosome itself is composed of protein and ribosomal RNA, and it has a major role in protein synthesis. So we discussed that RNA basically used as a carrier of genetic information. These RNAs play a very important role in protein synthesis, and it carries information from DNA and then send it to the site where the protein is synthesis, and it occurs in 2 steps, that is transcription and translation. So what is transcription? The process of synthesis of messenger RNA from DNA molecule is known as transcription, and the process of synthesis of polypeptide chain is known as translation. अब बेसिकली ये जो आपके पास RNAs है, इनका मेजर रोल है कि ये DNA से इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे. अब वो किस फॉर्म में कैरी करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA. अब ये जो मैसेंजर RNA DNA से बन जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. तो इसके बाद फर्दर क्या होगा कि ये मैसेंजर RNA आपके पास जब बन गया तो ये क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम के पास चला जाएगा, और वो राइबोसोम जो है इसमें से क्या करेंगे? मैसेंजर RNA को रीड करेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं. तो ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है कि कैसे जो है DNA से मैसेज जो है कन्वे होता है, और उसके मुताबिक जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है, और प्रोटीन जब बन जाती है तो वो उसकी वजह से हमारे जो कलर, हेयर के कलर, बॉडी कलर, मुख्तलिफ जो है जो एक्सप्रेशन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, डिफरेंट कलर आ रहे हैं, और जो मिसाल के तौर पे हेयर कलर, आई कलर, और इसी तरह मुख्तलिफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से एक्सप्रेस होते हैं. तो अगर हम इसकी समरी देखें कि जो RNA की, कि RNA का क्या काम है? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA. जब ये DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगी और क्या बनेगा? मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA के पास जो कोड होंगे इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन. तो बेसिकली क्या होता है? DNA से ट्रांसक्रिप्शन होती है, और DNA से क्या बन रहा है? मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से आगे क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है, जो कि 2 स्टेप्स हमारे पास हो रहे हैं. एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक ट्रांसलेशन है, जिसके अंदर से क्या होता है? जो DNA है
जो आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है कि आपके पास एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और उसके मदद से क्या होगा, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो और हमारे पास क्या है, इस तरह जो है इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में एक्सप्रेस हो रही है। और किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है हमारी बॉडी में, जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो प्रोटीन है। और ये 2 स्टेप्स पे अकर हो रही है, एक को हमने ट्रांसक्रिप्शन किया और एक को ट्रांसलेशन किया है। अब मैसेंजर आरएनए का बेसिक फंक्शन कैसे होता है, अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। हमने पढ़ा है कि हमारे पास डीएनए जो है आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और आपको पता है नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या करती हैं, आपस में पेयरिंग करती हैं और वो कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती हैं। तो हमने अपने ये पिछले जो लेक्चर था उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि ये कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, इसके साथ ये एंटी पैरेलल है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उनके दरमियान बॉन्डिंग मौजूद होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब कैसे रेंज होगी, हमेशा एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा। तो अगर मेरे पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो अब मेरे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस इधर क्या मौजूद है। ये कैसे अरेंज हुई हुई है कि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, और इसी तरह आपके पास ये फर्दर क्या हो रही है, ये बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह अगर हमें हम लास्ट में देखें तो एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, इसी तरह साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड कर रहा है। अब हमारे पास बेसिकली 2 स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं और एक को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं। जो आपके पास ये जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है, जिसको हम कहते हैं इट यूज़ एज अ टेम्पलेट। बेसिकली ये क्या होता है, ये यूज़ होता है टेम्पलेट के तौर पे। अगर आपको ये कहा जाए कि ये आपके पास जो स्टैंड है ये एज अ टेम्पलेट के तौर पे अगर हम फ़ोटो स्टेट करते हैं, जो मशीन पे अगर हम एक पेज रखते हैं तो उसके ऊपर जो मौजूद होता है तो वो क्या होता है आपके पास उसकी कॉपी आ जाती है। तो इसी तरह क्या होता है, ये बेसिकली क्या आपके पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट से क्या मुराद है कि अगर आप इधर देखें जो थायमीन है, थायमीन ये टेम्पलेट यूज़ एज अ टेम्पलेट स्टैंड। जब ये टेम्पलेट स्टैंड के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं एंटी सेंस स्टैंड, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, टी जो आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है वो कैसा बनेगा आपके पास, ये देखें थायमीन जो है हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है, एडेनिन के साथ। तो इधर क्या आ गया, थायमीन की जगह जो कोड आएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ बॉन्ड करता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए में थायमीन मौजूद नहीं होता, उसकी जगह क्या आ गया, यूरासिल आ गया। साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड करता है, इसी तरह साइटोसिन गुआनिन गुआनिन गुआनिन, जहाँ पे थायमीन मौजूद होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एडेनिन आ जाएंगे, और जहाँ पे एडेनिन मौजूद होगा वहाँ पे यूरासिल आ जाएंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि आरएनए में थायमीन मौजूद नहीं होता, दैट्स वाई थायमीन मौजूद नहीं होने की वजह से यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया, यूरासिल आ गया। और इसी तरह आपके पास ये क्या बन गई, एक लॉन्ग जो है आपके पास ये जो चेन नाइट्रोजीनियस बेसिस के मौजूद हैं, तो ये आपके पास एक चेन बन रही है जो क्या है कोडान। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या थे आपका नाइट्रोजीनियस बेसिस है। अब हम जीन की कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं, द नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। जो आपके पास अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होती हैं वो एक्ट करती हैं एज क्या करती हैं, एक यूनिट बनाती हैं जिसे क्या बोलते हैं, जीन। अगर हम ट्रिपलेट यूनिट की बात करें, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, इसी तरह ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट क्या बनाएंगे, आपके पास एक 3 यूनिट का आपके पास एक जीन बनाएगा, ये एक जीन बना लेगा, ये एक जीन बना देगा। तो हमारे पास जो डीएनए पे जीन्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोडान बोलेंगे, जो मतलब जेनेटिक कोडान जो है जेनेटिक कोड्स जो हैं वो डीएनए पे मौजूद होते हैं। ये जेनेटिक अब क्या होते हैं, जब ये रीड होते हैं और उसके बाद जब ये आपके पास इनमें से एक स्टैंड यूज़ होता है एज इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट, क्या होता है, यूज़ होता है एज अ टेम्पलेट, जिसे हम एंटी सेंस स्टैंड करें। उसके मुताबिक एक और मैसेंजर आरएनए में एक स्टैंड बन रहा है, एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसके मुताबिक क्या ये 3-3
अगर हम पेयर फॉर्म पे बना लें तो जेनेटिक कोडान बनेंगे, जिनको हम कोडान्स बोलते हैं। तो मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक कोड बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, कोडान। अब क्या हुआ, ज़रा यहाँ पे आपने गौर करें कि अगर मैं देखूँ तो इस पे जो कोडिंग हुई है, ये जो कोडिंग आ रही है मेरे पास, ये जो कोडिंग आ रही है ये रिजेंबल कैसे कर रही है। अगर इधर देखें ए मौजूद है, इधर भी ए मौजूद है, टी इधर मौजूद है, तो हमें पता है कि आरएनए में थायमीन मौजूद नहीं होता, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल। इधर जी मौजूद है, इधर 4 जी मौजूद है, इधर भी 4 जी मौजूद है, इधर सी मौजूद है, ठीक है, इधर भी क्या आ गया, सी आ गया, इधर थायमीन मौजूद है। लेकिन हमें पता है कि थायमीन जो है इधर क्या आरएनए में मौजूद नहीं होता, इस वजह से इधर क्या मौजूद है, यूरासिल। और इसी तरह देखें तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है किसके साथ, इस स्टैंड के साथ मैच कर रहा है। तो अगर देखा जाए, जब आपके पास एक स्टैंड यूज़ होता है टेम्पलेट के तौर पे यूज़ हुआ, और वो उसने क्या किया, जो इतने भी कोडान थे, जितनी भी कोडिंग थी, वो अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक कर दी, इस स्टैंड के मुताबिक कर दी। तो इस वजह से ये जो स्टैंड की कॉपी बनी है, इस स्टैंड की क्या बनी है, कॉपी बनी है। जिस स्टैंड की कॉपी बनती है उसको हम बोलते हैं सेंस स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। ये बात आप नोट करनी है आपने कि जिस स्टैंड की कॉपी बनती है उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड। और जो यूज होता है एज अ टेम्पलेट के तौर पे, जिससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, वो आपके पास क्या है, एंटी सेंस स्टैंड है या आपके पास नॉन कोडिंग स्टैंड है। जब मैसेंजर आरएनए आपका बन जाता है तो उसके पास जो कोडिंग हमने इधर से चेक करनी है, हमारे पास किसकी कोडिंग को कॉपी किसकी बन रही है, हमारे पास इसकी कॉपी बन रही है। इस वजह से इस स्टैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड। और आपके पास जो ये वाला स्टैंड होता है जो यूज हो रहा है एज ए टेम्पलेट के तौर पर, उसे हम बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड। जब आपके पास मैसेंजर आरएनए बन गया, अब आपके पास क्या बना, मैसेंजर आरएनए बन गया, आपके पास ये जो तीन यूनिट्स बन रहे हैं, AUG, GGG, CUC, AGC, GAC, ये आपके पास के एक यूनिट जो कहलाएगा, टेम्पलेट का एक यूनिट जो कहलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडान। इसी तरह मेरे पास ये एक कोडान है, ये दूसरा कोडान है, ये तीसरा कोडान है, ये चौथा कोडान है, ये पांचवा कोडान है। अब मेरे पास क्या होता है कि अब क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए बन गई, तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब जब हमारे पास एक स्टेप हो गया, क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से क्या बननी है, प्रोटीन बननी है। अब मेरे पास ये एक कोड मौजूद है, और ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडान मौजूद होता है। एंटी कोडान के मतलब ये कि अब AUG का जो एंटी कोड है वो क्या होगा, ये किसके साथ बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग इसकी किसके साथ होगी, UAC के साथ। ये A जो है वो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि आरएनए में जो है वो क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, थायमीन मौजूद नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। फिर इसके बाद U यहाँ पे मौजूद है, एडेनिन मौजूद है, तो UA आ जाएगा। गाबानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जो पहली पेयरिंग ये कोडान है, और इसका जो एंटी कोडान है जो किसके पास मौजूद है, ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद है। ट्रांसफर आरएनए में जो ये आपके पास कोडान ट्रिपलेट यूनिट का जेनेटिक कोड बनेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटी कोडान, ये इसने क्या कैरी की होगी, एक आपके पास जो है अमीनो एसिड कैरी की होगी, मेथियोनिन कैरी की होगी। ये अब मेथियोनिन जो है इसके साथ जो अटैच्ड है, ये क्या करेगी, इसके साथ क्या करेगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेरिंग होगी तो यहाँ पर मेथियोनिन क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और ये जो आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही होती है, बेसिकली क्या होती है, राइबोसोम पर ट्रांसलेशन हो रही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम क्या करता है कि जब मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहा है, किसको रीड कर रहा है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा, तो वो उसने रीड किया, और उसने ये जो ट्रांसफर आरएनए वाला कौन सा ट्रांसफर आरएनए अटैच किया, UAC वाला ट्रांसफर आरएनए को इस कोडान के साथ अटैच कर दिया। और दूसरी साइड पे क्या होगा, मेथियोनिन आ गई, फिर दूसरा कोडान आ जाएगा, वो क्या करेगा, एंटी कोडान के साथ बाइंड करेगा। इधर क्या होगा, मेथियोनिन एक जो है वो आपके पास जो दूसरी अमीनो एसिड आ जाएगी, उसके साथ बाइंड हो जाएगी, और यूं क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और ये जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं और एक पूरी चेन बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन।
तो राइबोसोम और ये प्रोसेस जो ट्रांसलेशन हो रही है वो आपके पास किधर हो रही है, राइबोसोम कर रहा होता है कि राइबोसोम की एक यूनिट जो है वो क्या करती है, मैसेंजर आरएनए को रीड करती है, और दूसरी यूनिट क्या कर रही होती है, साथ साथ जो है वो अमीनो एसिड्स के दरमियान पॉलीपेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाती जाती है। और जब क्या होगा, आखिरी में जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप ये हमारे पास स्टार्टिंग कोडॉन है, ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन आ जाता है। जब हमारे पास स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो वहाँ से क्या है, जैसे ही अटैच होगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो इतनी बनी है वो वहाँ से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और वो रिलीज़ कर दी जाएगी इनटू द साइटोप्लाज्म, और इसको जहाँ पे जो इसका फंक्शन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इसको तो हमने इसका कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश करनी है कि कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही है। तो आपको ये बात समझनी है कि सेंस स्टैंड क्या है, एंटी सेंस स्टैंड क्या है, एंटी सेंस स्टैंड को नॉन कोडिंग स्टैंड क्यों कहते हैं या टेम्पलेट के तौर पे क्यों यूज़ हो रहा है, सेंस स्टैंड को क्यों कोडिंग स्टैंड कह रहे हैं, और क्योंकि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे कोडिंग आ रही है वो किसके मुताबिक आ रही है, सेंस स्टैंड के मुताबिक आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्टैंड। एंटी सेंस स्टैंड को जो है इज यूज एज अ टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर द एंटी सेंस स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड। इसके मुताबिक जो है वो इधर क्या है, इसकी मतलब इसकी कॉपी क्या है नहीं बनी, इस वजह से जो है ये एंटी सेंस स्टैंड है या नॉन कोडिंग स्टैंड है। तो ये आपने याद रखना है। मैसेंजर आरएनए में जो ट्रिपलेट यूनिट्स हैं जो नाइट्रोजीनियस बेस के, वो क्या कहलाते हैं, कोडॉन कहलाते हैं। जो ये बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड बोलेंगे। ये एक जेनेटिक कोड है, 3 ट्रिपलेट का एक जेनेटिक कोड, ये ट्रिपलेट का एक जेनेटिक कोड। अब लेकिन ये हमारे पास अगर ये जो प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है, ये आपके पास सीक्वेंस किधर प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कोडॉन। और इसको क्यों कोडॉन करें, क्योंकि इसके मुताबिक जो है ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, वो लाएगा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी और अमीनो एसिड्स लाएगा, और उधर क्या होगी, राइबोसोम पे जो है पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म करेगी, फिर स्टॉप कोडॉन आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन फिनिश हो जाएगी और वो फिर रिलीज़ कर दी जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में और फंक्शंस ऑफ आरएनए के बारे में, कि कितने आपकी बॉडी के अंदर आरएनए कैसे प्रेजेंट है और उनका क्या क्या फंक्शन है, और इसके फंक्शन के अंदर ये हमने डिस्कस किया ये कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और कैसे जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।